श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि तदृशो अथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णकृतीनि च पश्यादित्यान् वसुन् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत इहेकस्थं जगत् कृष्णं पश्चाद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां तप्यसे द्रष्टुम् अनेनैव सवक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम्। हाँ, बस ये भगवान के वचन रहने देते हैं अभी जी। अब इसका हिंदी पढ़ेंगी मोना। मोना आप पढ़िए जी। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुद गणों को देख तथा और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो तो देख, परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। हाँ जी, हर्षा जी आप पढ़िए जरा इसकी इंग्लिश। My divine forms of different kinds and of various colors and shapes. Behold, sixth one. Behold Adityas, Vasus, Rudras, 2 Ashwins, also Maruts. Behold, O Bharata, many wonders never seen before. Seventh. Now behold here in my body, O Gudakesha, the whole world with the moving and the unmoving centered in one, and whatever else you desire to see. Gudakesha literally means conqueror of sleep. Arjuna acquired this name because of his alertness and dynamism. He had overcome sleep, sloth, and laziness. Krishna asked Arjuna to now make good use of his alertness, to behold the whole world, everything within the mighty form. The world consists of the animate and the inanimate, moving and unmoving. Arjuna's knowledge is confined to the limits of this world. Krishna impels Arjuna to see the whole world and many other wonders beyond it, all centered in one form, a vision which he will never chance to see again. 8th one. But you cannot see me with those eyes of yours. I give you the divine eye. Behold my supreme yoga. Krishna tells Arjuna that he cannot visualize the cosmic form with his human eyes. Hence the Lord uses his yogic power, this supernatural power, to provide Arjuna with a divine eye. The great sage Vyasa also uses his yogic power to provide Sanjay with a similar vision. The blind king Dhritarashtra, the father of the Kauravas, remains with Sanjaya in his palace in Hastinapur while the Mahabharata war goes on the battlefield of Kurukshetra. Vyasa endows Sanjay with the supernatural power to watch the proceedings of the battle even as he remains far away in this palace. Krishna now lends Arjuna the divine eye to see his cosmic form, which no human eye can see.
A bhakta, devotional seeker, accepts the Lord's statement fully, granting the divine eye and the vision of the cosmic form. But an intellectual finds it difficult to conceive of such a possibility. The problem arises when he reads the verse literally. The divine eye merely denotes a vision beyond actual physical perception. Even in the present day world, a speaker bids his audience to lend him their ears. He asks them if they see his point of view. Similarly, providing the divine eye simply means raising Arjuna's ability temporarily to conceptualize the magnitude of the transcendental being. ये मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने पूरा पढ़ लिया. नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन के लिए बहुत बढ़िया था. ये जो लास्ट का जो आपने पढ़ा ना, ये बहुत ही बढ़िया था. Yes. एक्चुअली ये मेरे ख्याल से ऐसा वाला मालूम तो है ही सबको इसमें. चलिए ठीक है, अब इसको बोलती है ये विम्मी जी बोलेंगी थोड़ा एक्सप्लेनेशन पावर. एक्चुअली साइंटिफिक अप्रोच के हिसाब से मेरे को थोड़ा सा बेटर लगा इनका एक्सप्लेनेशन विम्मी जी का. जी. इसमें एक तो यदि वो साइंटिफिकली देखा जाए तो जैसे अभी हम ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो भी आपके और जो टूल्स हैं, जो अब टेक्नोलॉजीज हैं, या ड्रोन है या उसके माध्यम से, या आपका फॉर दैट मैटर फोन है, यही कि हम तो ये मतलब ये जो बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस में एक अपनी एक जैसे वो कैपेबिलिटी की वो लिमिट है. नाउ वी आर लेवरेजिंग ऑन दैट अदर मीन्स और अदर टूल्स और अदर इंटेलिजेंस और अदर टेक्नोलॉजीज, और उससे हम अपनी जैसे कैपेसिटी को हम बढ़ा रहे हैं एंड लुकिंग बियॉन्ड और लुकिंग समथिंग विच वी आर नॉट आवरसेल्व्स. जितनी हमें जो मतलब हमारी बॉडीली जो कैपेसिटी है उसके बियॉन्ड हम कर पा रहे हैं लेवरेजिंग ऑन दिस. तो जैसे अब इसमें ये है कि वो संजय देख पा रहा है, संजय यहीं पर बैठे बैठे वो युद्ध का सारा देख रहा है. तो उसी तरह से जैसे अभी ये जब वॉर हो रहा था तो हम सब कुछ वहां पर वो है कि यहाँ पर बॉम्ब गिरे हैं, वहां से वो जा रहा है, इधर से उधर वो, तो वो कहते हैं सो वो सब कुछ दैट इज. तो एक तो ये है कि हमारी एक अपनी ह्यूमंस की एक लिमिटेशन जरूर है, और पर ये नहीं है कि वी कांट गो बियॉन्ड दैट. जो अभी हमें जो पॉसिबिलिटी की जो एक लिमिट बना रखी है बॉडीली कारण, बॉडी को लेके, ह्यूमन बॉडी को लेके जो है, वी कांट गो बियॉन्ड दिस, वो नहीं है. मतलब यू कैन एक्चुअली गो बियॉन्ड दैट. इट्स जस्ट दैट कि आपको वो टूल्स या वो जो एनर्जीज या वो है कि उनको लेवरेज करना पड़ेगा. तो वही जैसे हमारे ये जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, उसमें यही है कि आप अपने मतलब बॉडी के बियॉन्ड जब अपने आप को समझने लगते हो तो ये पावर्स अपने आप जैसे वो एक्टिवेट हो जाती हैं और तुम्हारी वो कैपेबिलिटी और सब कुछ उसको एनहांस कर देती हैं. और तभी वो शायद वो मेडिटेशन का या कुछ भी, जब आप बिल्कुल अंतर ध्यान में होते हो तो आप एक दूसरे जैसे कहते हैं ना ट्रांस में, आप दूसरे उसी में हो. तो ये जो सारे योगियों की सिद्धि है वो यही है ये कि मतलब आपने बियॉन्ड द बॉडी वाली एनर्जीज को आपने क्या कहते हैं उनको अपने में उतार लिया. तो ये है You tap the energies, tap the energies. tap those energies. तो वो है वही, जब वो सिद्धि जो है आध्यात्मिकता में जो सिद्धियां हैं वो अब मतलब नॉर्मल उसमें हम वो कहेंगे कि ये बिकॉज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अब हम वो पार्ट्स को हम बहुत इजीली ऑन द वो कहते हैं ऑन योर पाम यू आर गेटिंग ऑल दोज, एक तरह की वो सो कॉल्ड सिद्धि यदि उसमें आध्यात्मिक में देखो. पर मोटा मोटा ये है कि द मोमेंट यू राइज अबव दोज बॉडीली कैपेबिलिटीज और वो बाउंड्रीज, देयर इज मच बियॉन्ड विच यू कैन कॉम्प्रिहेंड. एक तो मुझे इसमें ये लगा. और दूसरा वो है ही कि जब ईश्वर उसको अपना विराट रूप दिखा रहे हैं तो उसमें भी विराट रूप में दिखाते हुए
जब वो कह रहे हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहते हो सो देख। तो पहले तो उसको वही वो कह रहे हैं कि सब कुछ मतलब पूरे ब्रह्मांड का, उसमें कि एक छोटे से बड़े तक का और बड़े से छोटे तक का, वही जो हम साइंस में फिर से वही कहते हैं कि ब्लैक होल से वहां से बिग बैंग थ्योरी वाली, उसी से सब एक छोटे से फूटा और वो पूरा विस्तार हो गया, और फाइनली भी वो उसी में ही वैसे ही होगा कि हम पूरा ब्रह्मांड उसी में ही फिर से समा जाएगा। तो और पर वही है कि इतना लास्ट में भी जब वो कह रहे हैं कि इन नेत्रों से तो नहीं देख सकता, तो वही है कि इतनी कोई हमारी बॉडीली लिमिटेशन है, बट वो ईश्वर कह रहे हैं कि वैसे लिमिटेशन नहीं है, तुझे थोड़ा सा बस अपना वो क्या कहो अपना ही नजरिया बदलना है, अपनी ही कैपेबिलिटी को तू एनहांस कर सकता है, और जब एक बारी वो एनहांस हो गई फिर तुझे पूरा वो विस्तार दिख रहा है, देन वो होलिस्टिक। और वही किसी अपनी सोच में भी, जब हम संकीर्णताओं में सोचते हैं किसी चीज को कि बस वो डब्बे में घुस के उसी तक सोचते हैं, तो हम बस वहीं तक लिमिटेड, और मोमेंट हम उसका होलिस्टिक अप्रोच लेते हैं कि हर एंगल से उसे समझने की कोशिश करते हैं, वो उसका सोल्यूशन कितना अलग होता है। तो हाँ, बस ये आया समझ। हाँ ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा है। अब कौन बोलेगा? दीपा से पूछ लेते हैं एक बार, फिर इस विनोद जी से पूछेंगे। हाँ जी दीपा जी, आप बताइए। हाँ जी नमस्ते। तो मैं ऐसे ही प्रत्यक्ष ही बताऊंगी। तो इसमें क्या है कि सैकड़ों हजारों नाना, पहले उन्होंने बोला कि 2-3 पॉइंट है बस, कि भाई नाना प्रकार के जो सब रूपों को देख, इसका मतलब कि सारा जो कुछ है, सारा चराचर वो सब भगवान का रूप है। फिर जो भी आदित्य, अश्विनी कुमार, 49 वसु, एकादश रुद्रो, ये फिर मतलब जो भी जो दिव्य पुरुष हो गए ना, ये वाले लोग, तो ये भी सब मतलब क्रिएशन और दिव्य पुरुष, ये भी सब उनके उनमें कह रहे देख। और एक जगत स्थित संपूर्ण जगत को देख, तो पूरे जगत को देख मीन्स पूरी, या तो दुनिया या पूरा में भी मतलब ये हो सकता है कि जगत से मतलब दुनिया या सोलर सिस्टम या उससे भी और चीजें भी हो सकती हैं, इसका मुझे क्लियर नहीं है कि क्या जगत को देख, ठीक है। और कुछ भी देखना चाहता है, मतलब इतना कुछ है देखने के लिए, वो कह रहे कि सब देख, तो जो भी कुछ तू सोच सकता है वो भी देख, परंतु मुझे इस नकृतिक आंखों से मतलब कि क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी जो है उसकी लिमिटेशन है, 5 तत्वों की बॉडी बनी हुई है, और इसकी ये लिमिटेशन है कि हम जो है कि इसमें नहीं देख सकते, इस नेत्र से हम दिव्य दृष्टि के बिना नहीं देख सकते, देखने में समर्थ नहीं है। दिव्य चक्षु दे जिससे मुझे ईश्वरीय शक्ति को देख, मतलब जो ईश्वरीय की शक्ति है, क्योंकि लोग देख ही नहीं पाते ना, हम लोग ईश्वरीय को क्यों यहाँ फंसे हुए, क्यों नहीं ईश्वर की तरफ जाते हम, क्योंकि उनकी शक्ति हम देख ही नहीं पाते और हमें एहसास भी नहीं होती। जो चीज हम फेस करते हैं उसको करते रहते हैं नहीं कर पाते। तो मगर वो बोले कि मगर उसको देखने के लिए एक अलौकिक चक्षु चाहिए, जो इन्होंने, बस मैं इतना ही बोलूंगी और आप बोलो। और बाकी ये दिव्यता के बारे में क्या कहती हो आप? दिव्य किस चीज को बोला जाता है? दिव्य मीन्स ईश्वरीय जो होता है, ईश्वर से प्रेरित। दिव्य तो हर चीज है वैसे, क्योंकि ईश्वर में बनाई हुई है, उसके रूप है, मगर दिव्य दृष्टि मीन्स जो कि गिवन बाय गॉड, जो ईश्वरीय शक्ति की जो दृष्टि होती है, बस इतना ही मुझे समझ आया। चलो ठीक है, बढ़िया। अब बोलेंगी हर्षा जी, आप बताइए। नहीं, अनामिका का नंबर है पहले। अनामिका आप बताइए पहले। हाँ जी सरिता जी, इसमें तो मतलब जो बाकी ये मतलब जो पहले वाले हैं तो ठीक है, इसमें मतलब मुझे यही समझ में आया कि हम सिर्फ शरीर और मैं के भाव में ही जीते हैं, जबकि प्रभु का जो निवास है वो तो मतलब अनंतता में है, बहुत मतलब बहुत विस्तार में है।
उसके लिए मतलब ये भौतिक जो आंखें होती है, मतलब फिजिकल आईज से आप नहीं देख सकते, उसके लिए आपको पूर्ण मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि पूर्ण समर्पण भगवान उनको बोल रहे हैं कि पूर्ण समर्पण के साथ मतलब आपको ये जो रूप है अलौकिक वो देखना होगा। और ऐसे पूर्ण समर्पण क्या चीज होती है? जैसे पूर्ण समर्पण मतलब कि जो ये मतलब बार बार जैसे डाउटफुल जो आता है ना, मतलब वो पूरी तरह से सरेंडर करना भगवान के, मतलब वैसे मुझे लग रहा है। पूर्ण शरणागत की स्थिति ये होती है कि मैंने अपनी भी बुद्धि तक भी दान में दे दी। हाँ बुद्धि से ऊपर परमात्मा। जी जी। अब ये विनोद जी से पूछ लेते हैं, विनोद जी को छोड़ना होता है क्योंकि। हाँ जी विनोद जी, आप बताइए। हाँ जी नहीं, सबने बिल्कुल विमी जी ने सबने बढ़िया बताया है। इसमें एक दो चीज ये ऐड करूंगा, मतलब भगवान उससे कह रहे हैं श्री कृष्ण की वो अपना विराट स्वरूप दिखा रहे हैं और उसमें कह रहे हैं उसको कि जो सूर्य के पुत्र हैं, जो वसुए हैं, मतलब जो अश्विनी कुमार, मतलब जो भी तुम सोच सकते हो ये ब्रह्मांड में जो उपस्थित है वो सब जो है मेरे अंदर तुम देखो। तो वो उसको बता रहे हैं कि मेरा विराट स्वरूप जो है, और मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि पूरी सृष्टि को चला मैं रहा हूँ और ये सब जो है मेरे अंदर ही समाया हुआ है, जो भी है वो मैं ही चला रहा हूँ और मेरे द्वारा ही चल रहा है वगैरह। तो वो एक पॉइंट है इसमें। और इसमें तो मुझे दिव्य दृष्टि, मतलब कि इसका अर्थ मुझे ये समझ में आ रहा है कि अभी अर्जुन ने सरेंडर कर दिया है तो उसको क्या बोलते हैं, मन शून्य हो गया है, तो वो अंतरात्मा से जो देखेगा तो वो सही दिशा में ही देखेगा। मतलब वो हो सकता है दिव्य दृष्टि या अलौकिक का इसमें अर्थ हो सकता है। बाकी तो सबने सही कहा है, ज्यादा इसमें कुछ मैं कहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। ये बिल्कुल ठीक बोली। दिव्य चक्षु ही उस बात का नाम है जहाँ पे मन जीरो हो जाता है। परफेक्ट बोलते हैं ये बिल्कुल हमेशा। जी विमी जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, बताइए। हाँ, एक और वो मैं पॉइंट कहना भूल गई इसमें कि एक मुझे वो लगा कि इसमें जो भगवान ने उसको पूरी तरह से एक तरह से पहले प्रिपेयर किया और फिर उस पॉइंट पर लेके आए और फिर उसका मतलब उसका पूरा वो दृष्टिकोण ही बदल गया। तो किसी भी चीज में मतलब बिफोर एक्टिंग वो जो हम वो करते हैं ना कि एकदम किसी चीज को हम रिएक्ट कर देते हैं, कोई हुआ कुछ एकदम फट करके, तो वो है कि पीछे का वो मतलब वो एनालाइज करना या पूरा उसको वो जिसमें कहते हैं ना कि अतीत से संवाद करते हुए अपने भविष्य का निर्माण करो। तो उसको पहले उस लेवल तक लेके आए प्रिपेयर्डनेस का कि उसका जो पहले का पूरा वो क्लीन किया और फिर वो आगे की उसकी यात्रा को निर्धारित किया। तो किसी चीज में मतलब लेसन लर्न्ड इज फ्रॉम दिस इज कि एक तो वही बिफोर रिएक्टिंग यू शुड बी फर्स्ट एनालाइजिंग थिंग्स एंड जो पीछे का भी जो है एक तरह का वही है कि क्लीन स्लेट। जब अतीत से संवाद करने का भी वही है कि आपने उससे वहीं तक करो कि उससे सीखा है आपने एंड देन कहते हैं मूव इनटू द फ्यूचर। तो ये बस एक हाँ पॉइंट मुझे जो लगा इसमें। हाँ ये ठीक बोला आपने, बहुत ज़्यादा ना सटीक बोला। जैसे ये है ना कि मैंने घर की सफाई की, उसको बिल्कुल मैंने खाली कर दिया, अच्छा भी खाली कर दिया, बुरा भी खाली कर दिया, सब कुछ खाली कर दिया। तो नए का निर्माण इस तरीके से होता है। तो बार बार हर मोमेंट में इस तरीके से नए का निर्माण करा जाएगा। और मैं कहती हूँ पुराना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मतलब पुराने में आप जा आप सकते हो ना। जैसे वो डिसीजन आपका है ना। तो आप पुराने में जाके कहोगे कि ये थोड़ी सी यूज कर सकते हैं, इस चीज को भी इसमें ऐड कर सकते हैं, पुरानी चीज को तो वो तो चेतना, स्वतंत्र चेतना का डिसीजन हो गया ना, फ्री विल फ्री है ना। अभी वो जो उसका मटेरियल पड़ा था, जो वो गंदे अच्छे दोनों के साथ में अटैच पड़ी थी, तो चेतना ने इतनी उस पे ले लिया कि वो अब सब कुछ डिस्कार्ड करने में हो गई है। लेकिन डिस्कार्ड करने के बाद जब वो नया प्लांट कर रही है तो नए में पुराना जो भी यूजफुल है उसको भी उठा लेगी, राइट। हाँ तो ऐसे ही बस वो मोमेंट को ऐसे ही जीना है बस। जी हर्षा जी आप बताइए। हाँ हर्षा जी बताएंगी। हर्षा जी आप बताइए।
रिमी जी ने तो सब अच्छा से, सब कोई, विनोद भाई सब ने अच्छा से बोल दिया है। मुझे एक ही प्रेयर याद आता है जो हम लोग बचपन में स्कूल में बोलते थे, वो स्टूडेंट्स प्रेयर बोला जाता था। तो वो प्रेयर था कि हम लोग को वॉरियर बनना है। सो इट स्टार्ट्स लाइक दिस, बिकॉज वी आर ऑलवेज फाइटिंग आवर डेस्टिनी, बट वी हैव टू फाइट इन ए वेरी इंटेलिजेंट वे। तो मदर ने बहुत छोटा प्रेयर लिखा था जो हम लोग हर रोज बोलते थे, मेक ऑफ अस द हीरो वॉरियर्स वी एस्पायर टू बिकम, may we fight successfully the great battle of the future, that is to be born against the past that seeks to endure, so that the new things may manifest and we be ready to receive them. तो ये जो प्रेयर का फिर मदर ने बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया था कि हम लोग के जो संस्कार होते हैं ना, वही हमारी पास्ट होती है और वो हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। पर जिस तरह से हमारे अंदर ओपनिंग आती है टू द डिवाइन, टू द लाइट, टू द एस्पिरेशन, और तभी तो छोटे थे तो बोलते प्रेयर टू द डिवाइन, तो अपने आप मन का जो दरवाजा खुलते रहता है, लाइट कम्स एंड द पास्ट गोज अवे वेरी स्मूथली। पर जो उसका अंदर यूजफुल चीज है वो हम लोग यूज, जैसे विमी जी ने कहा ना, वी यूज देम, वी लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, नथिंग इज वेस्ट, बट वी ऑल्सो गो टूवर्ड्स द फ्यूचर इन अ वेरी विक्टोरियस वे। इसलिए हम लोग अपने साथ हमेशा एक बोलते ना कि संघर्ष चलती रहती है कि वी हैव टू प्रोग्रेस ऑल द टाइम। तो ये पुरुषार्थ बोलिए, ये जो बोलिए, तो मुझे ये प्रेयर अभी याद आ गया जब ये विमी जी ने कहा ना, तो बहुत अच्छा लगा ये जो पूरा डिस्कशन है। और यही तो है कि अपने आप के अंदर वही जागरूकता, जो जब जागरूकता जाएगी, आज ही हम लोग वॉक का टाइम में बहुत अच्छी डिस्कशन हुई कि प्रारब्ध जो है वो कब तक हमारे ऊपर काम करती है। बोलते हैं जब तक हम लोग भगवान के साथ है तो प्रारब्ध की तो काम करना बंद है। प्रारब्ध अपना संस्कार, अपना डेस्टिनी जो भी है, पर जब हम लोग जागरूकता में आ जाते तो प्रारब्ध की पकड़ कमती हो जाती है। तो ये डिस्कशन एक हुआ था, मेरी फ्रेंड जो थी उसको इतना उतावला था अपना आंख को ठीक करने का कि उसके डॉक्टर, जो पहले डॉक्टर थे, ना बोले थे तो भी ये दूसरा डॉक्टर ने हाँ बोला, उसने आंख के ऑपरेशन कराई और फिर वो आंख एकदम निकम्मी हो गई। तो उसने खुद कहते कि मेरा इम्पेशेंट नेचर था, वही मेरा भाग्य बदल दिया, नहीं तो मैं काफी चीज कर सकती थी। तो ये जो स्वभाव जो होता है ना, वो भी हमारा एक प्रारब्ध का ही अंश रहता है, मुझे लगता है। तो जहां जहां हम स्वभाव को बदलते जाएंगे ना, वहां प्रारब्ध की पकड़ एकदम कमती हो जाएगी एंड वी कैन टेक राइट डिसीजंस। और फ्री विल जैसे आप बोलते हैं ना, वो तभी काम कर सकते हैं थोड़ी बहुत, यू नो। ऐसा होता है जैसे एक तो आपने जो ये जो प्रोग्रेस बोला ना, तो ये जो प्रोग्रेस भी जो शब्द है ना, वो आत्मा पे अप्लाई नहीं होती चीज, क्योंकि वो नित्य नूतन नया है। वो प्रोग्रेस वाली जो स्टेट होती है ना, तो प्रोग्रेस वाली स्टेट में नहीं जाना, एक्चुअली हर मोमेंट अवेयरनेस में जीना पड़ेगा। तो इस तरीके का बोध है, ये अवेयरनेस इस तरीके की चीज है कि जैसे अभी मैंने कुछ प्लान किया, अभी ब्रह्मा वाली स्थिति में आई हूँ मैं, राजसी के वाले उसमें आने की तैयारी मेरी चल रही है। अब वो पुराने तो चीज भूली, अब लेकिन अब जैसे सडन एक उसमें वो हो जाती है, कुछ चेंज हो जाता है प्लान, सामने वाली पार्टी का ही प्लान चेंज हो जाता है कि उसमें से जैसे कुछ भीष्म पितामह जैसे लोग, जैसे सपोज करो इधर तरफ पर आ जाते हैं, कुछ आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसमें जो है प्लान आपकी बार बार नहीं बदलेगी, वो फिर दोबारा इंस्टेंट बदलना पड़ेगा आपको। अपना बार बार जो है सेंटर पे ही रहोगे तो तब आप ये चीज कर पाओगे। सेंटर पे रहना ये होता है कि हमेशा खुले चक्षु से रहना। चक्षु मतलब ये चर्म चक्षु नहीं, आत्मिक चक्षु उस अवस्था को कहा जाता है जो शरीर और उससे परे होकर देख पाते हैं, इवन माइंड को भी नीचे रह जाता है। जो मेरे को क्या पसंद है, अब जैसे मेरे को दुर्योधन नहीं पसंद, तो नहीं पसंद में ये नहीं कि मैं हटा दूं उसको, पूरी तरह से हट नहीं सकता वो। यदि मैंने हटाने की उसको सोच ली तो वो दुश्मनी वाला एक्ट हो गया। तो दुश्मनी वाला एक्ट जो भी आप करेंगे तो वो कर्म का लेन देन जो है आपके अपने सिर पे आ जाएगा। तो ईगो का ये बनता है हर वक्त कर्तव्य कि वो भगवान ने बोला कि उसमें याद कर, मुझे याद कर बार बार, तो और तू युद्ध भी कर। तो याद करने का मतलब ये हो जाता है वहां से जो है एनर्जी सप्लाई वहां से आ रही है, ये चीज के कनेक्शन आप भूल गए ना, और आपने ईगो वाले उसमें तत्व में आप फंस गए, फिर आपके साथ में चूक हो जाएगी। तो हर क्षण याद करना मतलब एक भी क्षण आप जहां पर भी भूलोगे तो वो वहां पर ईगो अपना क्लेम करने लग जाती है ना। जैसे कुछ भी चीज जो उसने अच्छी करेगी तो वो उसमें वहां पर अपना क्लेम करेगी कि ये तो जो है चीज मैंने करी है। तो ऐसा करके नहीं चलता ना। तो वो पूर्ण समर्पण उस अवस्था का नाम है कि जितने तू विचार भी दे रहा है तो वो वहीं से आ रहे हैं, सोर्स से। मेरा काम सिर्फ सोर्स से कनेक्ट होना था।
बाकी जो स्ट्रेटेजी जो भी आएगी तो वो तू ही सप्लाई करेगा वहां से। ये इतना हद तक का शरणागत वाली स्थिति में हमें हर मूवमेंट में अभ्यास डालना पड़ेगा। तो उसमें जो सडन जो चेंजेस जो आते हैं ना, जिस चीज को हमारा माइंड ले नहीं पाता एकदम हम अपने आप को चेंज नहीं कर पाते, उसके अकॉर्डिंग नहीं चेंज कर पाते ना, तो वो जैसे बैक सीट ले लेते हैं थोड़ी सी कंफर्ट वाली। तो कंफर्ट जोन तो जो होता है वो ईगो का होता है हमेशा, कंफर्ट तो उसको ही चाहिए होता है। आत्मा को कोई कंफर्ट की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो स्वयं लाइट है, तो उसको कोई कंफर्ट लेवल नहीं चाहिए होता। तो वो अवस्था जो है जब तक नहीं आती, तो वो जो मूवमेंट होता है वो हर क्षण में आपका पूरा दिन में कितनी देर रहता है ये चीज़ देखनी पड़ेगी। और उस मूवमेंट को आप जितना बढ़ा के करेंगे ना, जितना ज़्यादा बढ़ाते चले जाएंगे, उतनी ही आपकी जो है ना हल्का एक लाइट जैसे कहते हैं उसको आप जी सकते हैं। ये तो ये मतलब जैसे एक अनुभूति ये चीज़ होती है कि उसमें पूरा दिन में हम जो ये सेशन करते हैं तो वो पूरा दिन में मेरी अवस्था ये कितनी देर रहती है, ये मैक्सिमम ये चीज़ जो है नोट करने वाली है। जी मोना जी बोलिए आप। मेरे पास तो कुछ बोलने के लिए ही नहीं बचा, नहीं बचा सबका सुन के तो कुछ बचा ही नहीं चलो कोई बात नहीं बोलने के लिए। ये मतलब भगवान ने वो मतलब अर्जुन को वो तसल्ली दिला रहे हैं, सारा कुछ मतलब उसकी मतलब संतुष्टि कर रहे हैं उसको, हर तरीके से भी उसके मन में कहीं पे भी कोई शंका ना बचे, वो सारा उसको क्लियर कर रहे हैं भगवान। संतुष्टि एक ह्यूमन वाला नहीं दिला रहे वो, जैसे हम जो मनों को जो वो कर देते हैं ना, मनों को हम वो कर देते हैं, बढ़ा देते हैं जैसे किसी के मन को, तो वो वाली संतुष्टि नहीं दे रहे हैं वो उसको। वो तो उसकी संतुष्टि की असंतुष्ट कर रहे हैं उसको, पहले असंतुष्ट करके उसकी प्यास को बढ़ा रहे हैं, पहले बढ़ा रहे हैं उसको कि ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके, सारे संसार को एब्जॉर्ब कर सके, वो बढ़ा रहे हैं, संतुष्टि नहीं दे रहे। सोनपाल जी जाओ। हाँ जी सोनपाल जी आप बताइए। आज तो विराट रूप और विश्व रूप की बात हो रही है। तो कोई चीज किसी पात्र में रखते हैं तो वो चीज से बड़ा वो पात्र होता है, यानी विराट स्वरूप हमने विश्व में देखना है, यानी विराट से भी बड़ा रूप है विश्व रूप। विराट रूप ये पहली फर्स्ट ग्लिम्स से अर्जुन ने देखी हो, फिर उसकी आंखें चौंधिया गई, फिर टैटल होने के बाद विराट शब्द को वो भूलता है और विश्व रूप को देखता है। ईगो का शीर्षासन है आत्मा, जब ईगो शीर्षासन कर लेती है ना तो आत्मा मिल जाती है हमें। अहम ब्रह्मास्मि भगवान कहते हैं, लेकिन वो हमारे तक आते आते वही शब्द हो जाते हैं तत्त्वम असि। पहले कहते हैं कि मैं ब्रह्मा हूं, फिर अर्जुन को कहते हैं वो तू ही है और तू ही मैं हूं। तो ये दो शब्द जो है अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि, ये दोनों के बीच की हमारी जर्नी रहती है। और चर्म चक्षु से ईश्वर को कभी पाया नहीं जाता, वो इंद्रियातीत है। वो हमारी जो सेंसेस है जिसे हम फील करते हैं, अनुभव करते हैं, बोलते हैं, उससे कभी भगवान वो सेंसेस के द्वारा वो फील नहीं होगा। इसलिए उसका एक नाम गोविंद है, क्योंकि गो का मतलब है इंद्रिय और विंद का मतलब है जो इंद्रियों के परे जाके संभलता है, दिखता है, वो गोविंद है। और शून्यता और अनंतता दोनों उसी में है विश्व स्वरूप में। वो अनंतता का स्वरूप है और हम उसका एक छोटा स्वरूप है, वो परमात्मा। जैसे आत्मा का कोई, अब आपने बताया ना कि आत्मा को कुछ लगता ही नहीं है अच्छा बुरा, फिर भी हम आत्मा के साथ ऐसे शब्द जोड़ देते हैं, ये महात्मा है, ये पापात्मा है, ये परमात्मा है, ये आत्मा है। असल में ये जो विशेषण है वो आत्मा के नहीं है। जो आत्मा जिस समय जो शरीर में है, जैसे गांधी जी को महात्मा कहा, ओसामा को हम पापात्मा कहते, तो वो आत्मा तो निर्लेप है, लेकिन हमारी लिमिटेशन है कि हम उसको बॉडी के साथ देखते हैं, इसलिए ये शब्द बड़े
बहकावे वाले हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, महात्मा पापात्मा। असल में कुछ नहीं है, परमात्मा ही है और उसका छोटा स्वरूप है आत्मा। और पास्ट को देख के फ्यूचर को ठीक करने की बात विमी जी ने कही, तो वो तो है वेस्ट में से बेस्ट बनाना है। जो गलतियां हुई है, जो कल तक हम जीते थे, वो आने वाले समय में बेहतर की ओर हम जाए। लेकिन एक टेस्ट है, ये सब के लिए मैं हमेशा एक टेस्ट को अपने आप को देता हूं कि मेरा आत्म स्वरूप, मैं वही परमात्मा का हिस्सा हूं, मैं भी लाइट हूं, मैं निर्लेप हूं। उसका मुझे कोई ऐसे टेस्ट चाहिए कि मेरी आत्मा वाली स्थिति कितने बनी रही। तो सबके लिए ये ऐसे टेस्ट है कि जो लोग, अभी हम तो सुबह 1 घंटा मिलते हैं और ये मोबाइल के जरिए मिलते हैं, लेकिन जिनके साथ में 24 घंटे बिताता हूँ, मेरी सास है, ससुर है, माता पिता है, देवरानी जेठानी है, ननंद है, बेटे बेटी है, उनके साथ हमारा सामीप्य, सायुज्य, सालुक्य कैसा है, हमारी छोटी छोटी बातों में उनके साथ एक्सेप्टेबिलिटी और रिजेक्शन कैसा है। तो घर वाले है ना, वो यार्डस्टिक्स है, ये पैरामीटर्स है। क्योंकि हमारे आसपास हम इतने वो हैबिचुअल हो चुके हैं कि हमारे स्वरूप को मुखौटों से हम बदलते रहते हैं। जब भी मुझे, अभी यहाँ पे वीडियो बंद है तो मेरा रूप अलग होगा, वीडियो चालू होगा तो मेरा रूप अलग होगा। और ये अपने आप को बताए बिना हम लोग इतने माहिर हो चुके हैं कि ये सब हम करते रहते हैं। अनजाने में भी हम बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से, एक्सपर्टाइज वाली बात से ये कर सकते हैं। तो हमारे निजी लोगों में हमारी एक्सेप्टेंस, ये हमारी आत्म स्वरूप की मेरे लिए एक यार्डस्टिक है कि कहाँ तक मैं कोशिश में जो हूँ सत्संग की बातों को अपने जहन में, अपने अस्तित्व में, अपने मूल तक ले जाने में मैं कहाँ तक सफल या विफल रहा, उसका एक परिचय मेरे घर वालों की बातों से, मेरे बारे में जो उनके अभिप्राय को मैं महत्व नहीं देता। अभिप्राय किसी दूसरे के अभिप्राय से हम हमारी जिंदगी को नहीं तोल सकते हैं, वो तो अंदर की महक से ही हम जिएंगे। लेकिन ये छोटा सा इंडिकेटर तो जरूर है। तो मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि हमारा जो ज्ञान है सत्संग का, उसका अप्लाई हमारे परिवार में कैसा है वो हम देखते रहे तो हमारा जो कल है वो आज बेहतर हो जाएगा। बाकी इंद्रियों से तो वो परमात्मा कभी मिलने वाला नहीं है, वो चर्म चक्षु से नहीं मिलेगा, तो दिव्य चक्षु से ही मिलेगा, ऐसा आज उसने बताया। तो दिव्य चक्षु कहाँ मिलते हैं, वो चश्मे कौन सी दुकान में मिलते हैं, कहाँ से लाएंगे हम, कहाँ से आएगा? क्योंकि हम हमारे जो एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स, इमोशंस जो भी हम बयां कर सकते हैं वो तो इंद्रियों के परे तो हम कहे ही नहीं है। हम इंद्रियों से ही, अभी भी बोल रहा हूं तो मैं शरीर का, मन का इस्तेमाल करके सरस्वती का जो मेरा गले का स्वर पेटी है उससे मैं बोल पा रहा हूँ। तो उसको समझने के लिए ये किसी इंद्रिय का जरूरत नहीं है, वो इंद्रियातीत है। तो वो इंद्रियातीत अनुभव के लिए वो जो भगवान ने, जैसे व्यास ने संजय को दिया और कृष्ण ने अर्जुन को दिया, तो उसको दिव्य चक्षु मिले। तो हमें दिव्य चक्षु कहाँ से मिलेंगे? तो वहां पे मेरी बात, मेरी आस्था रुकती है कि केवल ईश्वर कृपा, केवल गुरु तत्व कृपा। हमारे सारे प्रयत्न, हमारे सारी धमाल, हमारी सारी मस्ती, हम जितना कर सकने वाले ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं ना, और जो कर सकते हैं करते हैं, लेकिन असल में हमें जो कृपा चाहिए वो ईश्वर कृपा होगी, तभी हम उसको मिल पाएंगे। और वही सबसे बड़ी चीज है। और ईश्वर कृपा और कर्म, इसका चक्र ऐसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम शरीर में रह के, इंद्रिय में रह के कर्म करते हैं और इंद्रियातीत को हमें मिलना है। तो ये विरोधाभास को हमें एक सतह पर लाना है। शरीर, आत्मा, और शरीर में रहते हुए उसका अनुभव करना है। मरने के बाद तो चलो शरीर को जला दिया, आत्मा आत्मा में मिल गई, लेकिन वो अनुभव
आत्मा आत्मा में मिली। वो मेरा दादाजी तो आके मेरे को बोला नहीं कि बेटा हाँ मैं तो आत्मा थी और मिल गई हूँ परमात्मा से। कोई मरने के बाद आके बताता नहीं है कि असल में आत्मा कहाँ जाती है। आत्मा लोग हम बच्चे को भी, छोटे बच्चे को भी बताते हैं ना, दादाजी कहाँ चले गए, तो वो बोलते हैं भगवान के घर। लेकिन भगवान का घर कहाँ है, तो वो बच्चा भी उंगली ऊंची करके ऊपर की ओर दिखाता है। असल में भगवान का घर यहीं पे है, इसी ब्रह्मांड में, हमारे पास, हमारे मन में पैरेलल चल रहा है। तो इसकी कृपा हमें मिले, और उसकी कृपा के लिए ये सत्संग जरूरी है। और शरीर भाव से निकलना है शरीर में रहते हुए, यही मेरी जीवन का एक लक्ष्य है, और वही कोशिश में मैं लगा हूँ। ये जो पैरेलल है ना, एक तो जो आपने जो पैरेलल बोला, पैरेलल की बजाय जो मेन होना चाहिए, और दूसरा ऐसा चीज थी कि ये जो आपने बोला कि अपने परिवार का करें, तो जब ये सिर्फ जागृति का है, ये लेना देना, जागृति जब हो गई तो आप जिससे भी करेंगे व्यवहार, तो वो ऊपरी व्यवहार की बजाय वो आंतरिक व्यवहार जो आपके आत्मचक्षु से जो आता है व्यवहार, वो चीज़ ठीक होती है। चाहे बेशक इवन बहुत सुंदर वैसे वाले लोग हैं जो व्यवहार कुशल हैं, व्यवहार कुशल पूरा है हिसाब किताब सब कुछ, लेकिन व्यवहार कुशलता एक आत्मचक्षु नहीं खोल पाती है, वो तो एक पर्दा है एक तरीके से। तो एक तो मतलब पैरेलल की बजाय मेन स्ट्रीम में आना पड़ेगा। मेन स्ट्रीम में इस तरीके से आओगे आप कि सारा कुछ, जैसे आप अपना सिर्फ पात्र खाली करना है ना आपको। आपने कहा कि दिव्य चक्षु सिर्फ कृपा से मिलता है, तो कृपा को अर्जित करा जाता है, अर्जित किया जाता है कि जिन जिन पे हमने लेबल लगाए हैं कि ये अच्छा, व्यवहार वाले लोगों पे हमने लेबल लगाए हैं कि अच्छा, ये वाला ये बुरा इंसान, जो हमने भारी तौर पर जो कर्मों को एक परिभाषाओं में बांटा हुआ है कि ये अच्छा, यदि ये किसी को थप्पड़ मारता है या कुछ ऊंची आवाज में बोल देता है तो ये गड़बड़ है, पीस ये गड़बड़ है। तो इस तरीके की धारणाओं से, पहले धारणाओं से, अपनी स्वयं की सारी धारणाओं से मुक्ति करनी पड़ेगी पहले। जिन चीजों को हम कर्म के तल पर समझते हैं, तो कर्म के तल में जो हमने जो डिवाइड वाली जो लाइन करी हुई है, पहले उस चीज से आप न्यूट्रल भाव में आइए कि कर्म जो है, जो दिखता कर्म है, वो वास्तव में वो कर्म नहीं होता है। तो उस अवस्था में आप आएंगे और अपने पात्र को खाली करना है, ना कि शुद्ध करना है। शुद्ध पात्र वो अवस्था है जहां अच्छा बुरा दोनों चीजें खत्म हो जाती हैं। तब आपको दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु, वो अपने आप ही, जैसे आपकी लास्ट जैसे सफाई हो रही है कि आपने कुछ अच्छे लोगों को अभी स्थान दिया हुआ है अपने मन पर, और जैसे ही वो अच्छे वाली जो कैटेगरी है, वो जैसे ही अच्छे वाली कैटेगरी से आपका लेबल हटा, तो उसी समय कृपा हो जाती है। जैसे 100% डिग्री पे पानी उबल के और भाप बन जाता है, वो बताता नहीं। तो ऐसे कृपा हमें अर्जित करनी पड़ती है। तो जो अच्छा बुरे वाली जो कैटेगरी होती है ना, पहले कैटेगरी को हटाना पड़ेगा, तो तब दिव्य चक्षु आएंगे। और चक्षु के बाद में आपका कर्म, चाहे इवन अपने बच्चे के साथ में कर्म करोगे, चाहे इवन बाहर वाला कोई भी मनुष्य आ जाता है तो उसके साथ कर्म करोगे, क्योंकि आपकी आंखें खुल गई। अब खुली हुई आंखों में जो भी कुछ आप कर्म करोगे वो सही कर्म होगा। तो ये अवस्था करनी है। खाली ये बाउंड्री खाली हमारे घर तक नहीं जाती है, घर से भी रिलेटेड और भी लोग होते हैं जिनसे हमारा इंटरेक्शन होता है। तो खाली ये घर ही जो है हमारा 4 जनों का 10 जनों का जो घर है, वो सुचारू रूप से चलता रहे, तो सिर्फ वही यदि मोटिव रह जाता है, तो वो तो जन्म मरण की कहानी जैसे एक होता है ना, जैसे आप अच्छे घर में फिर जन्म ले लिया, फिर अच्छे वैसे वाले लोगों में फिर दोबारा पैदा हो गए, तो मुक्ति नहीं मिलती है इससे। जी, अब कौन बोलना चाहता है? अब फ्री, सब फ्री हैं, मतलब कोई भी बोल सकता है अनम्यूट करके। जी, मैं बोल दो। ये जो दिव्य चक्षु की बात करी है सोनपाल जी ने भी, ये कहीं मार्केट में नहीं मिलते हो, और तो इसका मतलब तो वो हो गया कि ठीक है, मैं मानती हूँ भी इससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, तो इसका मतलब तो वो कर्म कांड हो गया ना। भी कर्म कांड करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, हमें अंदर से उसके साथ प्रेम भाव रखना। प्रेम भाव तो कम लोग रखते हैं। वो जो गीता में भगवान ने बोला है भी 4 लोग मेरे मंदिर द्वार पे आते हैं, आर्त जिज्ञासु हो, और इस तरीके से के लिए ही वो कर्म कांड करते हैं। आज सावन का महीना चल रहा है, मंदिर में इतनी भीड़ होती है, तो वो ज्यादातर उसमें 90% तो लोग वही आते हैं ना जिनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। भगवान से प्रेम किसको है? प्रेम होना चाहिए, जैसे मीरा को प्रेम था भगवान से, उसमें फिर ज्ञान ध्यान की जरूरत नहीं पड़ती। बताओ कि ये जैसे जो भी कोई भी हम जाते हैं, जैसे इवन हम कहीं भी जाते हैं, हमारा मन कुछ चेंज मांगता है तब जाते हैं।
कोई भी जो हमें चेंज चाहिए होता है वो हमें चेंज किस लिए चाहिए होता है? चेंज इसलिए चाहिए होता है कि हम रोज के नॉर्मल रूटीन से हम बोर हो गए, वो इसलिए हमारा जो मन है वो चेंज के लिए मांग रहा है। तो चेंज के लिए हम जा रहे हैं, तो चेंज के लिए जा रहे हैं तो जो 2-4 दिन की जो छुट्टी हाँ, वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो जैसे हिल स्टेशन पे चले जाओ उस हम जो तरीके है से। ऐसे वाला चेंज जो है हम ऐसे परमात्मा के मंदिर में ऐसा चेंज के लिए क्यों नहीं जाते? मतलब हाँ, उसके आगे जाते तो कटोरा हैं। ही लेके क्यों जाना है चेंज के हमें? लिए मैं तो जाती हूँ मंदिर में चेंज करने के लिए। बात वो नहीं है, सब समझाने की है। जब भी आप एक्चुअली क्या है, जब आपका मन पूरा है ना, मन पूरे से जा रहे हो ना, तो मन से पूरे में जाके तो आप तो राजा की तरह जा रहे हो ना। तो राजा की तरह जाने में तो फिर मंदिर मस्जिद अलग से बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। उसमें तो आप अपने घर में ही बैठे हो पूरे मन से, तो और कहीं मिल रहे हो तो भी पूरे मन से मिल रहे हो, तो चैप्टर ही ओवर हो जाता है। वो तो आप स्वयं परमात्मा वाला बिहेव हो गया। जहां पर भी मन बीच में आता है वहां पर जरूरत पड़ती है। तो आर्थ जिज्ञासु की जो कैटेगरी में जो आता है ना, जिज्ञासु भी वह अवस्था हो गई कि मैं अपने अंदर नहीं देख पा रहा, अभी मेरे को जिज्ञासा है उसको जानने की। तो तब तक भी है, जब तक पूर्ण पे नहीं जाओगे ना बात नहीं बनेगी। पूर्ण चेतना को कोई भी उसका डिमांड नहीं होती है। फिजिकल डिमांड आप किसी भी तरीके से लेके तो उसमें दृष्टि अपने आप आती है कि फिजिकल नीड को मैं कितना ज्यादा जो है भर रहा हूँ, हर वक्त जो है मैं फिजिकल के उसमें रहता हूँ। तो ये चीजें अंदर से अपने आप ही बोलने लग हाँ जाती जी, है। हाँ जी। तो ये और किसी से मुलाकात हो, बात हो ना, हर कोई यही बात आप करता ये है करो ना, क्या अभी बच्चे जैसे हैं, मैं तो ये है वो है, मैं मतलब आपसे संसारिक मिली, लेवल की। मैं आपसे मिली तो मेरे को परमात्मा का क्यों नहीं लग रहा है? मोना से मिलना ही, जैसे भगवान कृष्ण थे वो 16,108 रानियों के साथ में मिलते थे तो कहते थे कि 100% वो टाइम एक के साथ में बिताते थे। 100% टाइम का बिताने का मतलब ये होता है कि जब मोना आई है तो मोना को ही अटेंड किया जा रहा है। उस समय दूसरे मेरे विचार नहीं चल रहे कि मैं उसको भी संभाल लूं, उसको भी तृप्त कर दूं, उसका भी देख लूं, फलाना ढिमकाना ये सब कर लूं। तो मोना है तो मोना है बस। 100% मैं अपना सब कुछ समर्पित करने को तैयार हूँ। वहाँ घर में कुछ छुपा नहीं रही कि अब मोना से ये वाली डिश मैंने छुपा ली और वो मैं सर्व नहीं करना चाहती उसको। टोटल मैं खुद स्वयं 100% समर्पित हूँ मन से। ये मतलब होता है बिताने का। जी बोलो बोलो मोना। नहीं बस और नहीं कुछ बोलना। चलो ठीक है। बिम्मी जी और सोनपाल जी ने अनम्यूट करा था, दोनों बोलिए अब एक एक करके। अच्छा, आप घर में बैठते हो और मंदिर में बैठते हो, कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं, एक जैसे ही लगता है मुझे तो। सोनपाल जी बोलिए मोना का जवाब। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ कि घर में बैठे हो और मंदिर में बैठे हो तो कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं, बल्कि मुझे घर में ज्यादा अच्छा वो लगता है, फीलिंग आती है भगवान के। वाह मोना, बढ़िया हो गया तो काम। तो अभी मंदिर नहीं जाना है ना? हाँ जी, अभी मंदिर नहीं जाना है ना कभी भी? नहीं मंदिर तो जाऊंगी, मैंने बोला ना मैं चेंज के लिए जाती हूँ। 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग करेंगे? हाँ, चेंज के लिए जाती हूँ। हाँ, भगवान के लिए नहीं ना? भगवान के लिए नहीं, चेंज के लिए। ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। मैं तो नहीं जाती भगवान के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं जाती मैं। 1% भी नहीं, 1% भी नहीं जाती। जी बिल्कुल सही है, भगवान के साथ जाना है 4 धाम। 1% भी नहीं जाते उसको भगवान। नहीं, उसको लेके जाना है, उसका दर्शन के लिए नहीं जाना है, उसको साथ लेके जाना है। उसको लेके मतलब भी क्या लेके- जाना है सोनपाल जी? वो ही तो जा रहा है। क्या लेके जाएंगे आप ही तो उसको? बोलते हो कि वो कोई अलग थोड़ी है, नहीं, हमारे अलग अंदर ही नहीं, है। अलग नहीं। मेरा अस्तित्व ही नहीं है, मैं उसको माने बैठी हूँ ना। मैं तो उसको क्या लेके जाऊंगी? वो तो वो ही जा रहा है, मैं तो जाती ही कहूँ। वो जैसे जाता है बस, मैं बीच में अड़ती नहीं उसके। इतना ही काम करना है, अड़ंगी नहीं देनी उसको कि बीच में तू वहां क्यों जा रहा है, तू जाता रहे। मैं तो देख रही हूँ ना तेरे को, बस तू चलता रहे। मैं भी शरीर के रूप में चल रही हूँ तेरे साथ में, खत्म कहानी। और क्या है? और शरीर भी तेरा ही दिया हुआ है, तेरी ही सब कुछ दी हुई है चीजें। ठीक बात है। तो उसको वो अलग साथ में भी लेके जाने में मतलब आपका अस्तित्व बना हुआ है, तो उतना भी अस्तित्व को क्यों रखना? बात ये है जी। एक आपने जो कल वीडियो डाली थी मुझे वो समझाना। मैंने वो डाली जो थी। कहते हैं इन्होंने जंगल डाला था, जंगल जलाया था। नहीं, इन्होंने सोनपाल सोनपाल जी जी बताएंगे हाँ उसके बारे में। उसको कैसे पता कि जंगल जलाया था उस बंदे को? अरे वो तो विमी जी कल बात कर रही थी ना, वो एक साथ क्यों इतने लोग मरे, उनको क्यों मरना था। तो
वो वीडियो देखते हुए मेरे को सत्संग की बातें याद आ गई, तो मैंने बस यही कि देखो ये सब कुछ ना कोई लोग अपने हिसाब से रिलेट करके अपनी अपनी थियरी को अपने आप को समझाते हैं। तो वो सत्संग में वो बात निकली थी प्लेन वाली और सामने वीडियो आ गया, तो मैंने ऐसे ही शेयर किया। शेयर करने के लिए कुछ मैं उसके पीछे कोई बात सिद्ध करना या नहीं सिद्ध करना ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन सुबह बात हुई थी और वही चीज सामने आ गई तो मैंने सोचा डाल दूं। अच्छा ठीक है, समझ गई। ओके चलो जी, मिमी जी बोलेंगी कुछ? मैं वीडियो का समर्थन भी नहीं करता हूँ और अपोज भी नहीं करता हूँ। न्यूट्रल वाले उस पे रहती है इनकी गाड़ी जी। वही कह रहे थे ना, ह्यूमन इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वही देखो सोनपाल, हम लोग बात कर रहे थे, सोनपाल जी के मन में वो थी, वो उनके आ गई, वो वीडियो आ गई और वो कैसे मन की बात कर ली। अब तक ध्यान में होते हो कौन चीज तुम्हें कैसे पकड़ रही है वहां पर। अंदर की होती है ना, जैसा आप चाह रहे हो वैसी वैसी चीजें जो है आपके उसमें आ गई, तो मन को जीरो रखो बस, उसको एक ही उसको। मुझे तो सीरियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लगता है कि मतलब इट इज जस्ट अनदर, मतलब बियॉन्ड योर जो आपकी बॉडीली रिस्ट्रिक्शंस है या कैपेसिटी कैपेबिलिटी है, उसको वो एनहांस कर रही है। और ये जब टेक्नोलॉजीज को भी हम ही तो उनको लेके आ रहे हैं, ह्यूमन माइंड ही तो लेके आ रहा है, ह्यूमन माइंड ही तो उनके ऊपर वर्क कर रहा है और उनको न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब हम अपने आप को ही, अपनी लिमिटेशंस को ही खुद चैलेंज कर रहे हैं, मूविंग बियॉन्ड। तो वही जैसे ईश्वर ने जब यहाँ पर वो संजय को चक्षु दे दिए, और वो है कि उससे जब नहीं दिख रहा तुझे अपनी फिजिकल लिमिटेशन में नहीं दिख रहा, मैं तुझे कुछ और देता हूं और फिर तुझे दिखेगा। तो और पर वो देते हुए भी शायद यही समझाया जा रहा है कि यू आर केपेबल, मतलब तुम, मतलब इस रूप में रह के भी, बॉडीली रूप में भी रह के भी तुम केपेबल हो उस बियॉन्ड को देखने के लिए। और उसके लिए एक और, ठीक है, एक और अस्त्र शस्त्र टूल यंत्र तंत्र जो भी है वो एक वो चाहिए। वो आजकल हमारे पास एआई है, पर एआई के होने के लिए भी एचआई की होनी सबसे पहले जरूरत है। तो और अपने आप को वो जो हम लिमिटेड उस स्पेस में रख देते हैं वो नहीं रखो। ऑलवेज हैव एन ओपन अप्रोच, आउट ऑफ बॉक्स थिंकर बनो, होलिस्टिक अप्रोच देखना सीखो और संकीर्णताओं में नहीं जियो। वो जो विस्तार और जो ईश्वर का जो विराट रूप है, वो मतलब विराटता को देखो और संकीर्णताओं में नहीं रहो किसी अपनी सोच में भी। और जहां पर आपने सोच कर ली तो आपका वो बहुत चीजें अपने आप ही सोल्यूशन निकलेगा, नहीं तो आप उसी में अटके रहोगे। यही है जी, यही हो सकता है, इसके बियॉन्ड कुछ है ही नहीं। तो वो तो कह रहे हैं कि बियॉन्ड बहुत कुछ है बस। हाँ, इनोसेंस वाला माइंड होता है ना, जो बिल्कुल पता क्या होता है इसमें ना, जैसे माइंड बिल्कुल ही आपका वैसा हो गया तो उसमें ना आप रहे नहीं। जीरो माइंड का मतलब होता है वो ना चीज हम बोल रहे हैं भाषा में तो आ रही है जीरो माइंड हो जाना, लेकिन उसमें ना ईगो वाला भाव ही बिल्कुल पूरी तरह खत्म हो जाता है। जैसे ये जितने भी आविष्कार वगैरह बताते थे ना, तो ये सारे होते हैं। अब जैसे मोहम्मद पे कुरान उतरी, अब वो पढ़े लिखे नहीं थे, सब कुछ ऐसे ही थे, ना उनको भाषा आती थी ना कुछ आता था। तो अब वो उतरने का मतलब ऐसा होता है कि इतनी बच्चे वाला जो वैसी होती है ना, वो चीज पे पहुंच गई है आपकी चेतना का लेवल इतना इनोसेंस हो गई कि आप जैसे सो गए, गहरी नींद में सो गए, तो माइंड में वो आकर वो आपसे कब आपका शरीर को और उसको यूज करके करा लिया। जैसे आपने अपना शरीर को सरेंडर कर दिया कि तू जो भी कुछ कर ले इसके साथ, जैसे परम को समर्पित कर दिया, तू कुछ भी कर ले। तो अब ईश्वर कुछ भी कर सकता है ना उससे, वो करेगा तो शरीर का सारा तो वो हमारे ही लेगा ना मतलब इस शरीर का ही लेगा ना। तो ये जो शरीर तो चाहिए हाँ। शरीर तो परमात्मा को भी, जैसे अब हम अपने आप को छोटा बताते हैं ना, तो छोटा और गलत बताना, छोटा और बड़ा दोनों चीजें ही बताना ईगो वाला प्रोसीजर चल रहा है। अब जब आप जीरो बताते हैं ना, तो जीरो बताते हैं तो यानी कि जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस सारे शरीरों में जो काम करती है वो कॉन्शियसनेस एक ही करती है काम। और वो कौन है? वो अवेयरनेस, मतलब बोध। इस बात का मुझे बोध है कि वही एक ही जो है कंटिन्यूसली सारी चेतनाओं में जो है एक ही घूम रहा है।
लेकिन अब जैसे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं किसी समय में ऐसा वाला, मैं गहरी नींद में, जैसे जो मेरे को सुषुप्ति वाली अवस्था होती है, मेरा माइंड उस तरीके से शांत वाली अवस्था में बैठा है, तो उस समय आप देखिएगा उस सारे चमत्कार होते ही वहां पर हैं। जिन चीजों को हम कहते हैं ना, हमने अपनी बुद्धि लगा लगा के करी चीजें बहुत सुंदर बनाई दिखने में, जो हम जिनको कहते हैं सुंदर, सुंदर वो होती ही नहीं है चीज वास्तव में। सुंदर वही है जो मेरे मिटने से जो बनती है, जो चीज वो शून्य वो बनती है सुंदर। मतलब चाहे वो युद्ध हो चाहे कुछ ही हो, मतलब बेशक बाहर कुछ भी हो। हाँ, अनामिका जी कुछ कह रही हैं क्या आप? अनामिका या हर्षा जी कुछ बोल रहे हो क्या? ऐसे लगा म्यूट करा आपने। सोनपाल जी बोल रहे हैं। हाँ जी बोलिए सोनपाल जी। अच्छा, एक बात याद आई कि बोलना है। हाँ, बोलिए। नहीं आप बोलिए। अरे आप बोलिए ना। बोलो मोना। मुझे ये बोलना है, ये जो आपने पूछा था ना कि मंदिर किस लिए जाते हैं, चेंज के लिए जाते हैं, मैंने बाद में दिमाग में लगाया, मैं चेंज के लिए नहीं, मैं भगवान के साथ प्रेम के लिए जाती हूँ। जैसे भगवान ने गीता में बोला ना, जो पत्थर पुष्प मेरे प्यार से चढ़ाता है मैं उसको खाता हूँ। तो मैं शिवलिंग पे वही मतलब पत्थर पुष्प प्यार से चढ़ाने के लिए, उसके लिए जाती हूँ। नहीं, ये तुम्हारा बात का जवाब जो आया है वो गलत आया है, और जो पहला जवाब था ना वो चेतना में वो पिरा होता है ना मोना। नहीं, सही बोला आपने, लेकिन गलत है ये भी सही है। नहीं, मुझे भी लगता है जो मोना ने कहा वो उसके अपने मन की है, उसको मन से जो शांति मिलती है वो ये करने से। अब जैसे जो मूर्ति को, अब आप मूर्ति पे पूजे, ठीक है, उनको किसी को भगवान हर जगह है, पर उनको किसी रूप में देख के उनको संतुष्टि मिलती है, और तब तो वो अपना एक उनका वे है, अपने अंदर वो क्या कहते हैं, वो प्रेम या वो जागृति लाने का वो उनका एक साधन है कि उन्होंने आगे मूर्ति रख दी, या मोना जा रही है कि उनको वो जो भी वो चढ़ा रही है, एज लॉन्ग एज वो प्रेम भाव है। जैसे ना शबरी ने चाहे प्रेम से जो भी, मैंने भी वही बोला, भी प्रेम के लिए जाती हूँ। नहीं वो मोना, मैं ये बात कहना चाह रही हूँ बिमली जी, मैंने तुम्हें ये खिलाया, भगवान जी मुझे ये दे देना, फिर ये दे देना, वो वहां पर खोट है। वो सब नहीं है, वो सब नहीं है। देखो ये वाला ना फिर व्यवहार जगत की बात हो जाती है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जैसे जो मोना ने जो चीज बोली उस समय सडन बोली गई ना, सडन बोली गई। अब यदि किसी ने कोई किसी का मर्डर ना किया हो और उसे नींद में उठा के उसको पूछा जाए और उसको सोचने का भी वक्त ना दिया जाए, उसके मुंह से निकलवा सकते हो आप? नहीं निकलवा सकते ना। तो ये व्यवहार जगत का काम हो जाता है। अब जो वो सोच के जो बोल रही है वो बिल्कुल शुद्ध मन से ही रहती है और शुद्ध मन से जाती है। वो मान ली बात, बिल्कुल जो पहले जो बोली थी वो उसने यही बात बोली थी। अब वो जो शब्द लोग लगा रही है वो शब्द भी वही है, निर्मलता से ही आ रहे हैं उसके शब्द। मैं ये नहीं कह रही क्योंकि कुटिल मन की है ही नहीं वो, तो वो कुटिल मन से नहीं आ रहे, लेकिन अब वो फिर डेकोरेशन चल रही है ना, बात डेकोरेशन की है। मैं कह रही हूँ ये डेकोरेशन को हटा दो। दिमाग लगाया ना, वही तकलीफ हो गई। हाँ, बात ये है कहने की। तो ये फिर अभी जो हम इसमें भी अभी ग्रुप में भी व्यवहार जगत में फंसते हैं। मैं बात ये कहना चाह रही हूँ कि व्यवहार पे पट्टी पड़ जाती है आंख पे, ये कहना चाह रही हूँ। ये तो चलो निर्मल मन की है, लेकिन कुटिल मन तो सोच लेता है ना, बात ये है। हाँ। अभी मुझे एक बात ये कहनी थी कि भगवान ने हमको सोने का नहीं बनाया, चांदी का नहीं बनाया, हमको मिट्टी का बनाया। मिट्टी में मिल जाता है ना ये मिट्टी का देह। तो ओशो का कल मैं सुन रहा था, तो ओशो ने बहुत अच्छा बताया कि हमें मिट्टी का क्यों बनाया, क्योंकि हमें मिटना है, और हम मिटेंगे, मिट्टी बन जाएंगे, तो वो मिट्टी खाद बन के उसमें से फूल खिलता है। सोने में फूल नहीं खिलेगा, चांदी में फूल नहीं खिलेगा, यूरेनियम प्लेटिनम में फूल नहीं खिलेगा। मिट्टी ही अपने आप को मिटा देती है, अपना पूरा अस्तित्व मिटा देती है, तब जाके उसके अंदर फूल खिलता है। इसलिए भगवान ने हमें पेरिशेबल बनाया है, मिट्टी का बनाया है, क्योंकि हमें मिटना है और हमें मिटना सीखना है। मिट जाना, शून्य हो जाना, जैसे सरिता जी हमेशा कहती है, उसी में तो कमल खिलेगा, उसी में तो फूल खिलेगा। इसलिए हमारा जो पंच महाभूत का शरीर मिट्टी का भगवान ने बनाया है। मिट्टी तुच्छ वस्तु नहीं है, वो सोने से भी ज्यादा कीमती है। वो फूल उगा सकती है, अनाज उगा सकती है। हम हमारा शरीर जहाँ पे भी हम जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा,
तो हम वहां से फूल उगा सकते हैं। सोना कहीं रख दो जमीन में 50 तोला 50 किलो, वो फूल नहीं उगाएगा, वो और केवल हम उगाएंगे। दूसरा, अब ये इस पे तो आपने तो ये इस पे बोला ही, लेकिन मैं इसके मन के लेवल पे बोलूंगी ये वाली चीज कि जैसे आपका मन है मन किसी चीज में कीमतें लगा लगा के बैठा है। अब आपके मन ने जान ली कि ये जो सोना है, मिट्टी है, फलाना डिमकाना, जितने भी पदार्थ जो मेरे मन पे बैठे हैं, जैसे गोल्ड और डायमंड बैठा है, तो वो सारा टोटल है मिट्टी। मिट्टी जैसी वैल्यू पहले उसको दे दी। अब मिट्टी से बन सकती है तरह तरह के आचार विचार, फलाना डिमकाना बन सकता है, और उससे मूर्त भगवान की भी तो बन सकती है ना उससे। तो बस वो मूर्त जब यदि हृदय में वो वाली मूर्त बसा ली जाए, सारे संसार को जीरो करके, और मिट्टी पदार्थ को मिट्टी पदार्थ कह कर, और अंदर रियल में भी उसी चीज को जैसे सोच के उठा के भी यदि कोई कह दे कि गोल्ड है तो आपको मिट्टी दिखाई दे, तो वो वाली अवस्था यदि आ जाती है तो तभी हम वो कृष्ण की मूर्ति जैसे कहते हैं ना, हृदय में बसी हुई जो बस वही रहती है। तो वो रह लो या शून्य रह लो, मतलब बात एक ही है वही। अभी इसीलिए उनको कृष्ण मूर्ति कहते होंगे। बिल्कुल। तो वो मूर्ति मतलब अपनी बार बार ना सोनपाल जी, देखा जाता है कि कहाँ ठुकाई पिटाई अपनी करनी है ना, तो वो देखा जाता है हथौड़ी कहाँ चलानी थी। तो बार भारी तौर की हथौड़ी के तो मैटर ही नहीं है, और बाहर भी चलानी है तो चलानी है हथौड़ी, क्योंकि बाहर में भी क्या होता है ना, जैसे ये अंदर की जो मूर्त बन जाती है तभी आप बाहर की भी मूर्त में आपके अंदर साहस आ पाता है बनाने का। तो वो ठोका पिटाई तो मैं तो व्यवहार जगत से बिल्कुल भी नहीं डील करती। राम का भी मेरे अंदर तो भय नाम की चीज़ नहीं है, तो व्यवहार जगत से तो मैं बहुत परे की चीज़ हूँ। तो वो अवस्था जो है वो तभी ठोक पिटाई की आती है, क्योंकि इतना समय बर्बाद होता है हमारा ये व्यवहार वाली चीज़ों में कि अच्छे शब्दों से किसी का दिल नाराज हो गया तो टूटे, ईगो होती है सब में, कुछ नहीं होता, ईगो को चोट लगती है, बाकी जो अखंड है अटूट है वो टूट नहीं सकता। तो हर वक्त एक माइंड में ये वाली चीज़ रहती है, सामने कोई बुरा मान रहा है, कोशिश होती है कि थोड़ा सा नॉर्मल उसमें व्यवहार करके बोल दिया जाए, और बाकी नहीं समझ में आती थी ठोका पीटी वाला जगत आ चुका है सामने मेरे ख्याल से तो। क्योंकि जितने भी है ना चोर बाजारी इतनी चालू हो चुकी हैं कि आप किसी को भी रख लो, जहां पर भी आपकी करुणा दिखेगी ना तो वहां पर आपका मिसयूज ही करा जाएगा। तो यूज कराने को तैयार हो तो बहुत बढ़िया, नहीं यूज कराना चाहते हो तो आपको करना ही पड़ेगा ये सब। अब जो संसार की जो हालत पड़ी हुई, क्योंकि कोई भी नॉर्मल उसमें आता नहीं। आप लेबर को ये बुलाते हैं, उसको पूरा अमाउंट दे रहे हैं, उसने जो मांगा मुंह मांगा वो दे रहे हैं, उसके बाद में भी उसको उतने घंटों में चोरियां करनी है, उसमें हर तरीके से चोरियां उसको करनी है। तो वो तो चीजें फिर वो नॉर्मल उसमें होएगा ही नहीं ना, व्यवहार जगत में आप कैसे जाएंगे इसमें। पर तो क्यों चोरी करनी है? किसको? उसको ना, हाँ करनी होती है ना, पूरा पैसा देने के बाद में भी वो घंटे पास करने हैं उसको। क्यों? अब क्यों तो वो खुद ही बताएगा ना, वो हमें क्या पता कि किस लिए। तो अपना हैंडसम अमाउंट मांगने में उसको डर है या तो कुछ है। जैसे अब एक लेबर की एक कॉस्ट चल रही है, अल्टीमेटली उसके पीछे क्या उसका है, उसका मन की इच्छाएं पूरी करना, परिवार की जरूरतें पूरी करना, उसके सपने पूरे करना, यही है ना। ये तो चीज उसको बात करनी पड़ेगी ना। मेडिटेशन तो उसको अपने आप में करेगा, जब ही तो आएगा वो इस वाले तल पर। मैं तो व्यवहार जगत में एक चीज समझा हूँ कि कोई मुझे चीट कर जाए ना तो उसमें मेरा कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं किसी को चीट करूँ तो ये गलती है। वो तो फिलॉसफी है ही। वो तो नहीं, कोई अपने को चीट करे व्यवहार जगत में, यानी 1000 का वस्तु 2000 में देके जाए, वो सब चलता रहता है। लेकिन वो कोई हमें चीट कर जाए ना, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। लेकिन हमें जागृति में रह के किसी के साथ चीटिंग वाला काम नहीं। आपको किसी ने ये किया, आप है ना, आप उस वाली बात पे रखते होंगे ये चीज, लेकिन ये कर्म की फिलॉसफी ये नहीं कहती। कर्म की फिलॉसफी ये कहती है कि यदि कोई भी चीज कर रहा है और आपको यदि देखते हुए में चक्षु खुले, आपको नोटिस में हो गया, और आपने यदि उस चीज को नकार करा या उसको छुपा दिया चीज को, तो वो भी चीज वो सही नहीं होती है। कम से कम उसको बोल उसको नकार भी नहीं करना है, छुपाना भी नहीं है, नजरअंदाज कर देना है। नहीं, नजरअंदाज भी करना तो वैसे ही हो गया ना। नजरअंदाज इस तरीके से हो गया ना, जैसे कि एक जैसे कोई आया तो उसने जैसे पार्ट्स अपने वो कर लिए, तो ये चीज बोली तो जाएगी ना उसको, तो ताकि वो आगे तो ना करे ना ये वाली हरकतें। चलो ठीक है कि आपने बियर कर ली, लेकिन वो उसकी ये जो इस तरीके की जो नहीं बोलना या उजागर नहीं करना ना, तो वो आगे उसकी कंटिन्यू बनी रहेगी चीजें। उसको ऐसा लगेगा, वो पता दूसरे को बेवकूफ समझता है कि जो है ना उसको नहीं पता चला, शायद ऐसी भी मेंटेलिटी होती है ना। तो इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है तूने कर दिया कुछ मैटर नहीं है, लेकिन जो है तुमने ऐसा करा था, ये मैं तो बोल तो जरूर देती हूँ। मैं तो, मेरे तो स्वभाव में, मैं वो तो रखने का तो मतलब ही नहीं है किसी का
कुछ भी रखने का मतलब किसी का गलत कर्म में अपनी जान को रख लूं, ऐसा नहीं है। बोलना तो मैं जरूर बोल तो देती ही हूँ, चाहे काम कराने के बाद ही बोला बेशक, मतलब वो तो चलती ही है इस तरीके की, वो तो चलेगी क्योंकि काम तो करवाओगे ही आप नेचुरली, वो तो काम गुजारा होता नहीं समाज में रहकर। जी बिम्मी जी क्या कह रही हो आप बताओ, आपने अनम्यूट किया हुआ है। मैं ना आप दोनों से एग्री करती हूँ। आपका सरिता जी बिल्कुल जो है ना, जो नेचर वो आपका वो है, वो कृष्ण के लेवल पर कि जो कुछ है उसको बिल्कुल वहीं का वहीं, वो जैसे किल करने वाला, और उसके मतलब वहीं का वहीं भी नहीं मैं कहूंगी, हाँ वो साम दंड भेद सब कुछ चलने, जहाँ जो कहते हैं सही रहेगा, मतलब आप स्थिति के अनुसार अपने आप को बदल रहे हो, और वहां पर यदि आपको लग रहा है कि कोई मुझे मिसयूज कर रहा है तो हाँ मैं बोलूंगी, मैं उसको अपने तक ही अंदर है कि मैं क्यों घुलूं उसको लेके, और मैं अपने जब मैं घुल रही हूँ तो मैं अपने आप को ही वो कर रही हूँ ना, मतलब मन में तो मेरे आ रहा है कि इस बंदे ने मुझे चीट किया है और ये बार बार मुझे चीट करता रहता है, और मैं उसी साइकिल में बार बार फंस के मैं हो रही हूँ, मतलब मन में है पर मैं उसको अपने शब्दों में नहीं ला पा रही हूँ। तो वहां पर मैं जब खुद घुल रही हूँ तो मैं अपने आप को ही कष्ट दे रही हूँ। तो उसमें बिल्कुल सही है कि कभी तो वो फूटना ही चाहिए। आपके साथ है शायद हम लोग वैसे करते हैं कि हम उसको अभी भी रोक के बैठे रहते हैं, और फिर वो एकदम बांध फूटता है, शायद हम लोग उसमें रह जाते हैं, वो व्यवहारिक और उसमें फंस के, पर नुकसान तो उसमें हम अपना ही कर रहे हैं। तो उसमें से आपका बिल्कुल जो आपका अप्रोच है, एटीट्यूड है, मतलब वो एक वो होते हैं ना कि वो क्या बिना डर के और बिना उसके यू आर टेकिंग यू स्पीकिंग। और जहां पर जब ये वो कहते हैं सोनपाल जी कह रहे हैं कि किसी भी मैं भूल गई सोनपाल जी जो बात कह रहे थे कि मतलब हम लोग चीट हो जाएं कोई बात नहीं, लेकिन हम ना करें किसी को चीट, ये बोल रहे थे ये। हाँ हम ना करें, तो वो ये है कि देखो मैं किसी को कितना सुधारने का, मैं पूरे जगत को सुधारने का तो कौन कर सकता है, मतलब तो मेरे अंदर जितनी जो मेरी कैपेसिटी है या जो मेरी लिमिटेशन है, मैं उसी में अपने आप को ही ठीक कर दूं। ये लोग तो अब पूरा संसार चोर है, मैं चोर इतना तक मैं रहूं कि मैं चोर ना बनूं, वो है मैं चोर ना बनूं। उसको ठीक है, मैंने उसको कहा, उसकी दिखा दिया कि तू चोरी कर रहा है, वो है, पर जब वो नहीं मान रहा या वो नहीं कर रहा, वो उसकी यात्रा है। मेरी अपनी यात्रा ये है, जो मेरी यात्रा मैं उसको तो अपने घर को तो साफ रख लूं ना, मतलब मैं बाहर जाके वो कहते तुम सफाई करो, ये करो, वो करो, मेरा घर खुद का साफ नहीं है तो मैं अपने घर को साफ करूं। और ये भी है, ये नहीं है कि बाहर की सफाई मेरे जिम्मा नहीं है, उसकी भी वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी मेरी है, पर जहां तक मैं कर सकती हूँ। पर जब इफ इट इज नॉट इन माई हैंड्स तो फिर छोड़ दो, फिर तुम अपने को ही ठीक रखने तक रखो। ठीक है वो कष्टदायी है, वो सब कुछ है, कहते हैं लगेगा अनदेखा करने वाली बात बाहर की चीजों को, वो भी है, उसमें भी तुम अपने आप को ही हाँ कहीं ना कहीं वो चाह रहे हो, पर एटलीस्ट अपने आप को तो ऑनेस्ट हो ना। वो कहते हैं ना कि वो जब एक वो टर्म है कि मतलब टर्म के जब हम कहते हैं और कोई नहीं देख रहा, ईश्वर तो देख रहा है ना, तो वो देख रहा है। मैं उसकी नजर में जब तक मैं सच्ची हूँ, उसकी नजर मतलब वो मेरे मन की वो है ना, मेरे मन में तो मुझे एटलीस्ट बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, मैंने किसी को कुछ वो नहीं किया, और उसमें ईगो नहीं है, वो मेरे मन की खुद की भी शांति है। मैं गलत वो जो मेरी अपनी प्रकृति या प्रवृत्ति नहीं है, मैं उसके कुछ अलग करूंगी तो मुझे खुद ही वो उसमें मुझे ज्यादा दुख होगा, उसमें मैं ज्यादा कुड़ूंगी। मेरा भी यही मानना है, जैसे बिम्मी जी आप जो बोल रही हो ना, मतलब ये है कहने का, जैसे ये जो थॉट प्रोसेस होता है ना, थॉट प्रोसेस ये पेंडिंग नहीं छूटना चाहिए कहीं भी, तो वो जीरो लेवल पर आकर ही छूटना है वो, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि थॉट प्रोसेस चल रहा है तो कर्म कुछ अभी बाकी बचा हुआ है, तो थॉट प्रोसेस को जीरो करती हूँ मैं बस, हर वक्त हर क्षण में थॉट प्रोसेस जीरो होना चाहिए, तो वो अल्टीमेट रिलैक्स वाली पोजीशन होती है, और वही मतलब मुझे पसंद है, बस वैसे ही वाले में रहना चाहती हूँ। दोनों ठीक है, मतलब दोनों बहुत सही है, और मतलब अल्टीमेटली तो आप अपने आप को ही रिलैक्स कर रहे हो दोनों स्थिति में। 100% रिलैक्स चाहिए, आधा भी नहीं, मतलब पूरा 100% वाला रिलैक्स। पर ये है कि व्यावहारिक उसमें से और सांसारिक उसमें मुझे भी बहुत लगता है कि लोग आपको
यूज करके चले जाते हैं, और आप तब भी वो मतलब मैं तो अपने बारे में कहूँ, मेरे साथ तो बहुत होता है कि इस तरह से बात लगता है, पर मैं तब भी नहीं बोल पाती, और मुझे लगता है कि चलो यार छोड़ो। रिमी जी, बीच में एक चीज बोलनी है, हाँ। सॉरी। नहीं बिल्कुल। कोई बाहर का आदमी चीट करके गया और अपना ही बेटा चीट करके गया, तब क्या फर्क होता है दोनों के व्यवहार में? हाँ, अब यहाँ पर तो बिल्कुल सांसारिक आ गया कि जहाँ नहीं, तक नहीं, किसी बिल्कुल और भी नहीं नहीं होता। है। वो बाहर ना, का ना, आदमी है, वो किसी का बेटा है, वो मेरा बेटा नहीं है। किसी का बेटा चीट करके गया और मेरा बेटा भी चीट करके गया, तो क्या फर्क आता है दोनों के व्यवहार में? प्रेम है उससे, फर्क प्रेम। आता है। अरे प्रेम में, हाँ। अरे मैं कह रही हूँ, नहीं नहीं नहीं, ये वाली चीज पे भी मैं अभी ये सोनपाल जी जो है, पहले भी इन्होंने, सोनपाल जी ने एक बार ये वाली बात बोली थी कि जो है हम बाहर वाले बच्चे के ऊपर क्यों नहीं खर्च कर पाते। तो बात ये नहीं होती, बात एक प्रेम की होती है, बात प्रेम वाला व्यवहार होता है कि जहां पर मैं सब कुछ करके भी, मैं यूज करवा के भी खुश हूं और यूज करके भी खुश हूं। एक तो ऐसी रिलेशनशिप है। तो अब आजकल के तो पेरेंट्स में क्या होता है, वो यूज करवाएंगे भी, करवाएंगे, फिर उसको, उसके अंदर उसका बच्चों का शोषण करेंगे। ऐसे वाले भी तो मौजूद है ना। पहले तो यूज करवाएंगे, अपने आप को करवाएंगे क्योंकि उनकी अपनी इच्छाएं हैं कि बच्चों को ये बनाना है, फलाना ढिमकाना, ये सब चल रहा है। तो बात ये होती है कि जहां पर प्रेम तत्व आ जाता है तो वहां पर सब कुछ माफी है, हर चीज की। यदि आपके मन में कोई विचार नहीं आ रहा, किसी का तो करने के बाद में कोई विचार नहीं आता। कई बार वो प्रेम तत्व की बात तो बिल्कुल सही आती है, लेकिन व्यवहार में जब हम बॉडी में रह के व्यवहार करते हैं, तो बेटे का गलती और दूसरे का गलती में उसका एक्सेप्टेंस में हमारे में फर्क आ ही जाता है। तो आता है, क्योंकि उसका जो है इस तरीके का हमारा प्रेम वाला, उसके साथ अल्टीमेट प्रेम वाला रिश्ता है ना हमारा उसके साथ। मोह के ऊपर प्रेम है ना, मोह के ऊपर प्रेम है। एक तो मोह वाला है जिसमें हम बिगाड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एक तो मोह वाला रिश्ता होता है। एक प्रेम वाला रिश्ता भी तो होता है ना, कि जिसमें हम उसको थप्पड़ भी मार रहे हैं और हमने करोड़ों रुपए की जायदाद भी उसको दे रहे हैं, तो लेकिन दोनों चीजें ही कर रहे हैं ना फिर उसके साथ। तो वो तो प्रेम वाला रिश्ता है। वो मतलब आपके कहने से मतलब वो जस्टिफाइड है, वो मतलब ठीक है यदि आप अपने बिल्कुल दो 100% ठीक है। यदि आप भूल, बेटे की तरफ आप थोड़ा सा हम झुके क्यों तो ठीक है। करेंगे, हमने थोड़ी ना पैदा करे हैं। लोग जो पैदा करे हैं, जिन्होंने पैदा करे हैं, वो भुगते अपने आप। हमारे को क्या लेना देना है उससे। हमने तो जितनी लाइबिलिटी करी हुई है उससे हमारा प्रेम का रिश्ता चल रहा है। जितने लोगों में मैं इंटरेक्ट करती हूँ तो उनके साथ मेरा प्रेम मतलब होता है कि मैं उसका अच्छे के लिए उसके साथ में हूँ, ना कि उसके उसमें हूँ। जो सही में, सॉरी अच्छे में भी नहीं, सही में मैं उसके साथ खड़ी हूँ। अब जैसे कर्ण ने साथ दिया, उसका दिया, तो सही में थोड़ी ना था वो। तो प्रेम तत्व क्या सिखाता है, सही में आप साथ हो, और यदि खुद गड़बड़ कर रहा है तो मार ठोक के उसको ठीक करो। जैसे भगवान कृष्ण ने उसको करा, ठोक बजा के तो ठीक कर रहे हैं इसको, और क्या कर रहे हैं अर्जुन को। तो ये प्रेम का रिश्ता होता है। तो प्रेम के रिश्ते वाला तो मेरे को बच्चे के लिए भी यदि कर रहे हैं तो प्रेम वाला रिश्ता है ना। उसको तो ठोक पिटा के वो सुनने को भी तैयार है, वो भी है, सब कुछ है, तभी तो ठोका जा रहा है उसको। जहां पर ठोकने की जरूरत है वहां ठोक रहे हैं, जहां देने की जरूरत है वहां लाड कर रहे हैं उसके। तो ऐसी सारी दुनिया थोड़ी ना आ जाएगी, ऐसे थोड़ी ना आ जाती है सारी दुनिया। प्रेम वाला में तो मिटना भी जानता है आदमी, मिटाना भी जानता है, कुछ नहीं होती मैटर वो चीजों में। और मैंने ये वाली तो चीज जो चैरिटी टाइप की सी जो बात होती है ना, ये तो मुझे डाइजेस्ट ही नहीं होती कहीं से कहीं तक भी, कि चैरिटियों में हम दूसरे लोगों का करें। हमने ठेके लिए हुए हैं कि जिसका संसार है, जिसने सृष्टि रची है, वो करे अपने हिसाब से, जिसने इतने जीव बनाए हैं करें। हमारा क्या लेना देना। हमें तो ईगो को खत्म करना है, अपने प्रेम तत्व में आना है, बस खत्म बात। हम तो उससे करें। वो चैरिटी प्यार में होती है, वो ऐसा नहीं है, ठेके से नहीं होती है। वो प्यार बढ़ता है ना, दिल पूरा प्यार से भर जाता है ना, तो जो मुझे मिला है वो मुझे बांट देना है। नहीं, ये मैं कह रही हूँ सोनपाल जी, जैसे आप जो प्रेम की जो बात कर रहे हैं, ठेकेदारी हो जाती है प्रेम में। ठेकेदारी की ये तो चीज को, ये इसको मैं गिरने नहीं दूंगी। जैसे अब अर्जुन को भगवान कृष्ण भागने नहीं दे रहे, ठेकेदारी ले ली ना उन्होंने बिना कहे, और अर्जुन ने समर्पित कर दिया, ठेकेदारी पूरी दे दी अपनी, और पता भी नहीं उसको कि मैंने ठेकेदारी दे दी। इतना अनकहा काम है। किशन जी अर्जुन को प्यार करते हैं और दुर्योधन को नहीं करते, ऐसा तो था ही नहीं ना। 100% है, करते हैं प्यार, लेकिन उसको पता नहीं है ना, प्यार के तरीके अलग अलग होते हैं। यदि एक आदमी तो रिकॉग्नाइज कर रहा है और एक आदमी रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा उसके प्यार को, लेकिन रिकॉग्नाइज करे या ना करे किशन जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो नहीं फर्क पड़ रहा, तो वो उनका प्यार करने का तरीका क्या है, उसको मृत्यु देना। नहीं सुने तू आएगा तो तू मेरे पास ही ना। तू अर्जुन को मैं गले लगा के ले लूंगा, लेकिन तेरे को मार के ले रहा हूं वापिस। ले तो मैं अपने पास ही रहा हूं ना, अपनी शरण ही तो ले रहा हूं। शरण में तो मेरी ही आ रहा है वो। दुर्योधन आ रहा है, दूर चला गया बच्चा, उसको कैसे लाना है मेरे को अपने पास वापिस। नहीं आने को तैयार हो रहा वो, माँ बुलाती चली जा रही है उसको कि तू आजा आजा।
नहीं आ रहा, वो दूर चला गया क्योंकि मटेरियल में फंस गया। मटेरियल कंकड़ मोती अच्छे लग गए तो उसको कैसे बुलाएगी, अब कैसे बुलाया जाएगा उसको? ऐसे बुलाया जाता है बस। मुझे तो आज भी मतलब प्रेम पाकिस्तान तो मेरा ही दोनों में लगता है। है। हाँ पाकिस्तान मुझे मेरा ही लगता है। नहीं, मुझे भी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुझे ऐसी इतनी इच्छा है कि मैं उस गलियों में, उस दूरी में घूमूं, क्योंकि मेरा हिस्सा मुझसे बिछड़ गया है। तो आप जाइए, कि क्या दिक्कत है? ईश्वर को आप तो अपने हृदय में बसा के जाते हैं ना, तो वो तो सब चलेगा। फिर कहीं भी घूमो आप, उसकी नहीं, जाना धरती- है, एक मेरी नहीं, जो नहीं। विश लिस्ट है उसमें तो पाकिस्तान जाना है। मनीष जी, ये जो मोदी जी के मन में भी ना यही है कि वो मेरा ही हिस्सा है, वो लेके आ जाएंगे। और फौजियों में भी घुसा हुआ ही यही कि मुझे लाना है, वो आ जाएगा। आप पीओके तक तो घूम ही आओगे बिना पासपोर्ट के। आज हर्षा जी क्या बात हो गया, आप बिल्कुल साइलेंट बन के बैठ गई। मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है क्योंकि मदर ने तो बहुत साल पहले प्रेडिक्ट कर लिया था कि 5 parts Pakistan will come into 5 parts and one day it will merge with India because it is not capable of living on its own. तो ये हो ही रहा है और हो ही जाएगा। तो मनीष जी आप चिंता मत करिए। आप अभी देखिए, रामायण हमने भेजा ना कल, रामायण पाकिस्तान में लोग ने किया ना, तो कितना रिस्पॉन्स मिला रामायण का। वो जो लेखक जो था इज रिटन, कितना रामायण का रिस्पॉन्स मिला वहां में। तो आस्ते आस्ते ओपनिंग हो ही जाएगा, ह्यूमैनिटी एक हो ही जाएगी। इट्स जस्ट क्वेश्चन ऑफ टाइम, है ना? बस यही इंतजार है। बस इंतजार की घड़ी बहुत मीठी होती है बस। और हम में श्रद्धा रखनी है बस। चलो, मैंने कहा देखो, हम उनको बिल्कुल स्वच्छ करके लेंगे। अभी उनके ना दिमाग पोल्यूटेड है, उनको ठीक करके लेंगे, नहीं तो वो हमारे यहाँ पर आके भी गंद मचाएंगे। तो इसलिए धीरे धीरे ही ठीक है। ये वैसे भी ना, ये जैसे वो बिमी जी आपने अभी बोला ना कि जैसे कोई यूज कर जाता है, वो कर जाता है ना, तो वो कहने की बात दूसरे की नहीं होती है। वो ये आध्यात्मिकता ना, सबको जय श्री आध्यात्मिकता कृष्ण। सिखाती यही है कि आप बेवकूफ ना बने ना, तो वो इतना ज्यादा आपको अलग कर देती है कि आप बेवकूफ बनने का चैप्टर ही ओवर हो जाता है। जहां पर थॉट कोई करप्ट आने वाला होता है ना, उससे पहले उसकी मनोदशा को रीड कर लेता है इंसान जो जागृत है। चलिए क्लोज करते हैं। सवा घंटा हो गया आज। एक स्टोरी मुझे शेयर करनी थी कि जब ये इंदिरा गांधी का असैसिनेशन का पहले की बात है, वो कृष्णमूर्ति को मिलने गए थे, तो कृष्णमूर्ति ने उनको आह्वान कर दिया था कि देखो अभी तेरा जो लेवल है ना, पूतना का लेवल हो गया है। पूतना उससे पूतना का। एंड यू बी वेरी केयरफुल, अदरवाइज यू सफर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पूतना। थोड़ी टाइम के बाद ही उनकी असैसिनेशन हो गई। Because that blue star was her making. तब उनके कब गए थे? इमरजेंसी के बाद मिलने? हाँ, जब उनका असैसिनेशन हुआ ना, उसका पहले। अच्छा। हम्म। अच्छा, कृष्णमूर्ति जी की कब हुई थी डेथ? कृष्णमूर्ति passed away in 1992 or 3। अच्छा, इनकी ओशो के बाद हुई है। ओशो 90 में हाँ, गए हाँ। हैं। अच्छा, ओशो 90 में गए हैं, ठीक है। हाँ, और इंदिरा गांधी went in which year? 92? 84 में गई है। 84 में गई है इंदिरा गांधी तो। हाँ, वो राइट्स कब हुए थे? 84 में तो हुए थे राइट्स, 84 में हुए थे। and he passed away, sorry, in 86। हाँ, मैं वही कहूँ, इतना डिफरेंस नहीं था। हाँ, इतना डिफरेंस He passed away in 86। But he said, this is also recorded, that he said that, you know, you have become a putna now, you know, because she was doing wrong things, no? And he was fearless, you know. He spoke his mind। अरे वो तो And I think इंदिरा गांधी के साथ भी वही हुआ ना कि देखो वो कहीं ना कहीं तो ईगो में आई। पहले उनको कहते थे कि जी गूंगी गुड़िया, तो वो उन्होंने जब वो गूंगी गुड़िया से बोलना शुरू हुई तो फिर उसको when she was speaking mind out, तो लोगों ने फिर थोड़ा सा सराहा। तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर ना वो सेल्फ का बहुत शायद आ गया। वो She यही was a very होता है good, बिम्बी जी, ये आध्यात्मिकता है ही है कि तुम अपने मैं के बाजे मत बजाओ, परम के बाजे बजने दो। देखो वो पहले उन्होंने सुना उसको, जब वो मानिक शाह ने कहा कि अभी हम अटैक नहीं करेंगे, तो तब वो उस स्टेज में थी कि वो सुनती भी थी लोगों की, और फिर सुन के एनालाइज करके होलिस्टिक व्यू लेके तब एक्ट करती थी।
बाद में वो बन गई कि जी बस शूट 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 वाला। इमरजेंसी में भी ऐसे ही किया उन्होंने, दिमाग खराब हुई वो हुआ था। तो चलो खत्म करते हैं आज का, कल मिलते हैं। ओके जी, जय श्री कृष्णा।